In our previous episode of Women as Custodians of Cultural Heritage in Xiaomin District, Tato, we have seen how the women are preserving culture through carrying forward the old practices like traditional weaving, maintaining the dialect by folk arts, and learning about the ornaments and its history. Upon venturing further in the Xiaomin district, we are right now in Mechuca. Mechuca is also home to a very close-knit community, the Memba community. In this episode, we will further explore the answers to these questions. How are women contributing to preserving the culture of the Memba community? And how the culture here is maintained and practiced every day, timelessly. As we explored the culture and traditions of the Memba community, one thing became clear. These practices are sustained through a collective effort. Along the way, we learned of a key community establishment that stands at the center of preserving this cultural heritage. Our journey also led us to Mr. Cherin Goiba, a local author whose book, The Rich Legacy of Memba, offered deeper insight into the community's history and values. Through his guidance, we understood the role of women and collective and collaborative leadership in sustaining these traditions. And then we were finally introduced to the NCDS. NCDS stands for Neinang Cultural Development Society. Neinang also refers to the overall community of the Memba tribe. This organization, NCDS, has played a pivotal and integral role in terms of preserving the culture and carrying forward the legacy of it. So to further understand the real functions and what are the achievements and the contribution of women in the Memba community through the lens of NCDS, we have with us the present Vice President of the NCDS organization, Mr. Cherin Goiba. Let me welcome him to you. And तो सर वेलकम. थैंक यू. आप पहले बताना चाहेंगे कि NCDS का जो फाउंडेशन है कब से शुरू हुआ है? NCDS का फाउंडेशन लगभग 2015 को इसको शुरू किया गया. अच्छा. और इसका कंसेप्ट था, हमारा एक तो आलो में ऑफिसर था मिस्टर सिरिंग नक्सल DRO, उनका सिर्फ कंसेप्ट था कि सोसाइटी को लेकर. तो उनका कंसेप्ट में हम सब ने 2015 में नेनंग कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी को स्थापना किया गया. एंड देन उसमें मैं खुद जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और उसका ओवरऑल मैं बायलॉस को भी मेक्स किया. तो नेनंग कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी का मेन जो थीम था, ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा ओल्ड एज कल्चर एंड ट्रेडिशन को ही लेके आगे बढ़ा है, ये बना गया. और 2015 के बाद हम लोग डायरेक्टली कल्चर का ऊपर ही फोकस किया, क्योंकि हमारा ओल्ड एज कल्चर इतना रिच है कि 100 में से 40% एक्सटिंक्ट हो चुका था. तो हमने सबसे पहले गांव से शुरू किया. पूरा गांव पे अपने जितने भी NCDS के मेंबर्स थे उनको लेकर एक अवेयरनेस रखा गया, जिसमें हमारा कल्चर्स को लेकर ख़ास करके इम्पोर्टेंटली जो कल्चर में आता है, हमारा जितने भी फोक सॉन्ग्स है और फोक डांस है और हमारे मेंबर के म्यूज़िक आइटम्स है, उनको लेकर हम लोग अवेयरनेस दिया. आफ्टर दैट अवेयरनेस के बाद फिर हम लोगों ने अवेयरनेस तक ही सीमित नहीं रखा, उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आए. तो प्रैक्टिकल फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ के मेंबर के वुमेन से पार्टिसिपेट किया कल्चर में. NCDS के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा और एक ग्रुप उभर के आया है, वो हमारा नक्संग आजिज़, नक्संग आजिज़ आया है. और नक्संग आजिज़ खुद स्पॉन्सर करके, नक्संग आजिज़ मतलब नक्संग सिस्टर्स, उनमें कम से कम 9 मेंबरशिप है. उन लोगों ने अपने खुद गाना को खुद सेल्फ कंपोज किया और बहुत लोगों का कंपोज वाला गाना को लिया और ओल्ड ट्रेडिशन वाला गाना को भी उन लोगों ने छान के लिया. छान के इस बार उन्होंने
am joined by a folk artist of the Memba community. They go by the title Naksang Ajis. Naksang is a name of It's a clan. Naksang is a clan, and Aji means sisters in the Memba language. So Aji's Naksang sisters. They have been curating music, folk dance for over a decade now, since they started in 2012. Today they'll be showing us a dance form and a music form which goes by Dongsa. Am I saying that right, Aji? Dongsa. Temri Sangbo. Temri Sangbo and Dongsa. So to further understand this, we will also be talking to them, but first let's see their performance, what they have prepared for us. आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, so beautifully, so gracefully coordinated. The only word that comes to my mind right now is how captivating. अभी हम तो जानना भी चाहेंगे सबसे पहले ना ये परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि हमने 3 परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर देखा था, तो आप थोड़ा उसका ब्रेक डाउन कर देंगे क्या, टाइटल वाइज और डांस फॉर्म और म्यूजिक फॉर्म वाइज? थैंक यू मैडम। तो आज जो हम लोग जो परफॉर्मेंस किया उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ऑफ कोर्स तो सबसे पहले जो हम लोग कंप्लीट जो है ट्रेडिशन जो है सॉन्ग जो तेमरी सांगो जो लाइन में जो खड़ा करके डांस के साथ हम लोगों ने जो गाए, ये जो है हमारा नेनांग सोसाइटी, हम मेंबर या नेनांग सोसाइटी का ये गाना तेमरी सांगो जो है हर ओकेजन में, जैसा कि शादी ब्याह हो, हाउस वार्मिंग हो, घर बनाना हो, उसका बाद कुछ स्पेशल ओकेजन क्लॉसर हो, या हर स्पेशल ओकेजन में जो है ये गाना जो है हम लोग यूजुअली शुरू करते हैं। तेमरी और वो गाना के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। तेमरी सांगबो रांगे जी, दैट मीन्स ये जो है जो हमारा अपना तरफ से अपना कल्चर नियम का तरफ से जो नियम नीति जो है जो करना है वो हम लोग होस्ट जो है करना है। एंड इन रिटर्न्स मेलम सिक्सम मी तब इन रिटर्न्स जो हम लोग को जो है मेहमान हो जो भी हो, वेल विशर ब्लेसर, वो जो है हमको ब्लेसिंग देंगे। तो ये जो है फर्स्ट गाना। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग जो है डोंग्स जो मेमराउन करके जो डोंग्स जो नाचा है वो फिर तेमरी सांगबो के बाद जो है जब हम लोग का कोई यूजुअली जो है गाना होगा डांस शुरू होने से, तो वो जो है
डांस फॉर्म जो राउंड करके जो फोक सॉन्ग है वो भी जो हम लोग मैंने लीड गाई एंड मेरा सिस्टर्स जो कोरस में जो गाए है उसका हम लोग खोल रात भर हम लोग डांस जो है नाचते हैं। तो ये आज हम लोग 3 लाइन करके 2 गाना जो है हम लोग यहाँ में फिल्माया है। ये दोनों गाना जो है फर्स्ट गाना जो है गांगडी थोम्बो, ये जो है इसका मीनिंग जो है मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो है कुछ चीज़ जो है हम बहुत नेचर का साथ जो है जुड़ा हुआ है। जैसे कि गांगडी माने पहाड़ का सबसे पहले बर्फ़ है, उसके अंदर में फिर नेक्स्ट आता है हमारा पांगरी माने वैली है, और उसके बाद फिर आता है हमारा नदी है माने पहाड़ पेड़ पौधे नदी। तो सब जो है हमारा जो है प्रीशियस माने गॉड गिफ्टेड, उसके साथ जो है हम कैसे रहते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ टू बी हियर विद दिस ब्यूटीफुल नेचर। तो इस तरह का मीनिंग है। और उसके बाद जो 3 लाइन फिर नेक्स्ट जो एक सॉन्ग जो है जे लागी चावादांग, उसमें हमने जोड़ा है। ये फिर हमारा ऐसा बिलीफ है कि कुछ भी ओकेजन हो या कुछ भी हो, हम लोग जो है मेन जो है फिर अनाज का, तो एक हो गया आगे का नेचर, दूसरा जो है फिर अनाज जो है फल फ्रूट जो इतना मेहनती, और हम नेनांग मेंबर कम्युनिटी तो बहुत मेहनत हो रहा है। तो उसका जो इतना मेहनत करके जे लागी माने पल्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ अनाज जैसे कि मिलेट हम लोग खेती करता है, उसको हम लोग इतना दिल से मेहनत करके जो करते हैं, तो उसको जो है जैसे कि इन टर्म्स ऑफ वाइन्स अपोंग डी लागी माने वो अनाज का जो है हम लोग अपोंग जो बनाते हैं, छांग गाना में वर्ड्स आया है, वो छांग मेहनत बना के सबसे पहले जो है हम लोग का हर चीज़ जो है होली का हिसाब से जाता है। तो सबसे पहला बूंद जो है हमने मेहनत करके जो अनाज जो बनाया है उसका जो है बूंद जो है हमने गिरा के सबसे पहले जो है हम लोग भगवान को और यूनिवर्सल वेल बीइंग पीसफुल के लिए हम लोग प्रे करके सबसे पहले हम लोग भगवान को देते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग का जैसे कि लामा माने जो माने हम लोग का जगह का जो हेड है जो इस टाइप को वो लोग को ऑफर करते हैं। एंड थर्ड जो है जो सबसे पहले जो हमको जन्म दिया माँ पिताजी उन लोग को हम देते हैं। तो फोर्थ जो है फिर हम लोग सब खुशी के लिए सब साथ मिलके हम लोग पीते हैं। इस टाइप का मैंने जो होली जो है हमारा बिलीफ सीक्वेंस में हम लोग का होता है, तो इस तरह से मीनिंग रहा है। अच्छा, तो डांस फॉर्म तो वो है ना, गाना में आप लोग ऐसा मीनिंग बनाता है? हाँ, गाना में मैडम जो है ऐसा मीनिंग बनाया। हाँ जी। और उसके बाद लास्ट में जो साइजिंग वाला थोड़ा हम आज इस बार जो हम लोग काठमांडू वोकल दी के जो हम लोग डांस फॉर्म में जो थोड़ा दिखाया, और उसका भी मीनिंग मैडम ऐसा है कि हम लोग सब माने यूनिवर्सल ब्रदरहुड हार्मनी जो हम लोग सब हर इंसान जो है एक ही माँ पिताजी से निकला है, जाता थोड़ा आइडेंटिटी अलग अलग है, लेकिन है तो हम सब वी आर सिस्टर्स, वी आर ब्रदर्स, हम लोग एक साथ है। यूनिटी इंटीग्रिटी मैंने सब एक ही से निकाला है। इस तरह से पहचान अलग अलग जरूर है, लेकिन हम सब जो है एक ही माँ पिताजी का है। इस तरह से हाउ ब्यूटीफुली, इतना अच्छा से आपने हमें ब्रेक डाउन करके सो ब्यूटीफुल। The sector, the most important sector of our society, the youth. अभी हमारा यूथ का NCDS का थ्रू कैसा कैसा पार्टिसिपेशन रह रहा है? कि हमारा NCDS का जो मेंबर्स हमने बताया, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बहुत फ्यू मेंबर्स है, तो यूथ का पार्टिसिपेशन के लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म इसलिए दिए थे कि जैसे कि आपका अरुणाचल इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड सोसाइटी है, तो बहुत सारे जगह पे इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2-3 एग्जांपल देखेगा, ज़ीरो फेस्टिवल, मास्कॉन फेस्टिवल, तो वहाँ पे हमारा सोसाइटी एपेक्स बॉडी को डायरेक्ट वहाँ से सर्कुलर आ जाता है आपका कल्चरल एग्जीबिशन करने के लिए यहाँ से भेजिए। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहला जब भेजेगा तो अंडर 14 to 17 ईयर्स वाला बच्चे को ही भेजते हैं। सर
ओके, तो हाँ जी, आउटरीच तो मतलब आप लोग तो 14 to 18 ईयर्स को हम इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि हमारा कल्चर को आगे जाने उसको और उसको मौका दे। वैसा हमारा उससे आगे बुजुर्ग भी तो कर सकते हैं, वो परफॉर्म को आराम से कर सकते हैं, वही डांस को वही सॉन्ग्स को, लेकिन उसी को हम प्लेटफॉर्म जो हमारा कल्चर विभाग में है वो उनको ट्रेन अप कराएगा यहाँ पे, उसको एक्सपोजर का रूप में उस प्लेटफॉर्म में ले जाता है जहाँ पे हम लोग एक्सपोज करते हैं। तो द एक्सपोजर इज गिवन थोड़ा अपना जो आपका डांस ग्रुप का टीम है उसका नाम बता दीजिए ना। हम लोग का डांस का नाम का टीम है NCDS, नैनांग कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी। अच्छा, एंड कितना मेंबर्स है आप लोग का यहाँ में जो अभी प्रेजेंट है? हाँ, फिलहाल तो अभी 5 मेंबर्स ही है। हाँ, लाइक जनरली कितना मेंबर रहता है? जनरली 10 मेंबर्स होते हैं और भी ज़्यादा है। हाँ हाँ, तो आप लोग को कितना साल हो गया ये डांस ग्रुप में रह के? 4 इयर्स होने वाला है अभी। कौन कौन सा डांस फॉर्म करता है आप लोग? जो बोथ फोक और एंड ये जो मॉडर्न दोनों करता है? जी। अच्छा, तो सबसे हम एक बार सुनेंगे, आप लोग को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है करने के लिए? मॉडर्न ही अच्छा लगता है करने में। आप नहीं बताएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? मॉडर्न। अच्छा, आप लोग सब स्कूल में है क्या? जी। तो आप लोग अभी तक कैसा कैसा इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करता है? हम लोग तो फेस्टिवल में ही करते हैं, जैसे यहाँ में मिचुगा में अभी 5 ट्राइब्स है, तो वो लोग का कुछ फेस्टिवल आने से हम लोग को इनवाइट करते हैं और हम लोग उसमें ही डांस करते हैं, और बड़ा इवेंट और वेडिंग में, उसके बाद फेस्टिवल्स में भी करते हैं। आप बता देगा ये क्यों इम्पोर्टेंट लगता है आपको, ये आप लोग जो डांस रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि अगर हम लोग को मतलब बुलाएगा तो फिर हम लोग को पहचान होगा कि हम लोग का भी एक ऐसे मतलब कल्चर है मेंबर ट्राइब का, तो इसलिए हम लोग मतलब दूर दूर से बुलाने से हम लोग रिप्रेजेंट करने जाते हैं। तब तो आप लोग तो यूजुअली रिप्रेजेंट डांस का थ्रू ही करता है ना कल्चर को? ड्रामा भी होता है? ड्रामा में हम लोग सब अपना, ये तो बहुत आप देर कर दिया बताने में। ड्रामा भी होते हैं, हाँ। हम लोग ड्रामा में हम लोग पूरा अपना लोस्टर को फेस्टिवल को भी साथ में दिखाते हैं, और डांस भी होते हैं वहाँ पर। उसके अलग अलग ड्रामा में हम लोग अलग अलग लेडीज को भी दिखाते हैं। तो ड्रामा का थ्रू आप लोग का ग्रुप ड्रामा भी मतलब वो करता है, शोकेस करता है? अच्छा, तो आप लोग का पूरा ग्रुप जो ना, आप लोग सिर्फ ग्रुप लोग जाके करता है ना, आप लोग और भी इंसान लोग को इनवाइट करता है ज्वाइन करने के लिए? इनवाइट करते हैं, बट इनिशियली लीड आप लोग ही करता है। तो ड्रामा भी आप लोग का ये ग्रुप में ही आ जाता है? कब से कर रहे ड्रामा? तब से ही, जब से शुरू हुआ है। अभी ड्रामा तो करने थोड़ा मुश्किल होगा लग रहा है आप, लेकिन कुछ हम लोग को भी ऐसा डांस स्टेप हमको सिखा देंगे।
दले मैडम तो अभी चरण सर हम लोग को मैरिज सेरेमनी दिखाने जा रहा Yes. है मेंबर कम्युनिटी का जी। एंड वी विल आल्सो बी सीइंग कि इनमें कम्युनिटी का जो मैरिज का जो ट्रेडिशन होता है उसमें हमारा मेंबर वुमेन का ना क्या क्या रोल होता है एंड ये जो सेरेमनी कैसे होता है ये हमें दिखाने के लिए लेके आया है मिस्टर चरण जो है यहाँ पे। तो एक सेरेमनी हो भी रहा है तो चलिए। एक्चुअली हमारा मेंबर का ये शादी विवाह का रीति रिवाज बहुत ही लंबी है। खास करके आपका शादी से पहले लड़की घर में लड़का जाकर एक तो ये करता है, हमारा खमगा होता है। तो खमगा ये है कि लड़की घर में जाके जस्ट लड़की माता पिता से कन्विंस कराता है और घर वालों से कन्विंस करके उसमें उसका जन्म कुंडल का अनुसार डेट को फिक्सेशन किया जाता है। जैसे हमारा धर्म का अनुसार शुभ डेट ये फिक्स हो जाएगा तभी लड़का का घर में लड़की आएगा। तो आज वो शुभ दिन है, आज ही वो लड़की यहाँ पे आएंगे। जो लड़का के घर से आप बहुत जल्द आ जाएंगे अभी, तो आप आइए हमारे घर के अंदर। Oye, na. Jangan kasih gue nolan. What we encountered in Mechuka was not just a display of tradition, but the quiet order through which life is sustained. Across shared spaces of folk expression, in the circle where drama and dance are learned, and in marriage ceremonies guided by women, the Memba way of life unfolds with steady purpose. From moments of gathering to rites of passage, these practices are neither rehearsed nor retreating. They continue through care, participation, and belief. And so, yet again, in the quiet hills of Shiomi, culture moves forward profoundly and devotedly, carried through life's most defining moments by the guardians of tradition, the Memba women of Shiomi.